خدا کرے آپ کو آب کوثر نصیب ہو اماں۔ شکریہ میرے بچے۔ تو اب جب کہ تم سیراب ہو گئے ہو تو اٹھو اور اپنے گھر لوٹ جاؤ، تمہارے گھر والے پریشان ہوں گے۔ میں کوفے میں غریب الوطن ہوں اماں، میرا کوئی گھر اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ کوفہ اجنبیوں کا قاتل ہے بیٹا، اس 1000 چہرے والے شہر کیوں آئے؟ ہم کوفیوں کے بلاوے کے مہمان تھے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ مسلم ابن عقیل۔ میرے سر پہ خاک، تم مسلم سفیر فرزند رسول ہو؟ کیا مجھے صرف آج کی رات اپنے گھر میں پناہ دے سکتی ہیں؟ صرف اپنے بیٹے بلال سے خوفزدہ ہوں، جو کہ ایک نااہل لڑکا ہے اور نیچ قسم کے لوگوں کے ساتھ میخاری کرتا ہے۔ رات سے لے کر فجر کے اذان تک میخاری اور عیاشی میں مصروف رہتا ہے۔ فجر کے قریب گھر آتا ہے مست و مدہوش حالت میں۔ ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ وہ نہ سمجھ سکے۔ کیا ہوا حبیب؟ کیا کیا تم لوگوں نے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ گھروں پر مردے کی خاک اڑا دی گئی ہو۔ چیخ چیخ کر ہمارے گلے تھک گئے۔ دیوار سے تو آواز آئی مگر کوفیوں کے گھروں سے نہیں آئی۔ میں محل کے سامنے بھی گیا، کوئی نہیں تھا۔ جناب مسلم کہاں ہیں ابن سجا؟ نہیں جانتا حبیب، میں نہیں جانتا۔ جب میں آیا تو کوئی بھی نہیں تھا، نہ محل کے سامنے نہ مسجد کے اندر۔ یعنی تم ان کے ساتھ نہیں تھے اے ابن سجا؟ نہیں، تم گئے تو ہم بھی گئے گلی بند کرنے کے لیے، مگر کوفے کی زبان دراز عورتوں کو نہ روک سکے، مجبوراً ہمیں راستہ کھولنا پڑا۔ مجھے شرم آئی کہ خالی ہاتھ جناب مسلم کے پاس جاؤں۔ میں اپنے سر پہ خاک اڑانے گیا تھا مگر وہ بھی نہ کر سکا۔ جب آیا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ جناب مسلم کوفے میں غریب ہیں حبیب، وہ یہاں اجنبی ہیں، معلوم نہیں کہاں گئے ہوں گے۔ لعنت ہو کوفہ اور کوفیوں پر۔ کوفہ عصیب ہے، کوفہ منحوس ہے، کوفہ جادو نگری ہے، کوفہ بزرگان دین کا قاتل ہے، کوفہ جانوروں کا شہر ہے۔ خود کو سنبھالیں حبیب، ہمیں جناب مسلم کو ڈھونڈنا ہوگا۔ آخر کیسے؟ کس محلے میں؟ کس قبیلے میں؟ تمام گلیوں میں سپاہی اور فوجی پھیلے ہوئے ہیں، جب تم آئے تو نہیں دیکھا؟ کیا ہوا حبیب؟ کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے کوفہ اور کوفیوں سے گھن آ رہی ہے، وہاں جا رہا ہوں جو اس طرح آفت زدہ نہ ہو۔ حسین کوفی کی راہ میں حسین کی طرف جا رہا ہوں۔ خدا کی قسم میں بھی اس کافرستان سے بیزار ہوں، رکو تاکہ نکلنے کا چارہ کر سکیں۔ چارہ کار نہیں ہے ابن سجا، مجھ میں رکنے کی اب سکت نہیں رہی۔ عاشق حسین دریا کا رخ کرنے جا رہا ہے۔
चुप रहो बस, अब तंग मत करो इब्ने अज़ल। मैं तुम्हारी तरह क्या गुजरा नहीं। तुम्हारी नानी मेरे लिए दुल्हन लाने वाली है, बिल्कुल चांद सा चेहरा। खुदाया, कैसा गधा है ये, कम से कम एक ढंग की औलाद भी होती। बिलाल, बिलाल। कल रात में हर रात से पहले घर गया। दोस्तों ने बहुत जिद की कि रुक जाओ, थोड़ी सी और पी ले, कुछ ऐशो नौश कर ले। मैंने कबूल नहीं किया। बस उन लोगों की बातों से चिढ़ता हूँ, वरना मुझे इस शराब हराम की भी कोई परवाह नहीं है। जितना पिला लो पी लूंगा। मुझे डर है कि उस बूढ़ी औरत ने मेरी उठने की आवाज ना सुन ली हो और मुझे बद्दुआ ना दे दी हो। कहते हैं कि माँ की बदुआ जल्दी असर करती है। वैसे सलार साहब, खुदा ने चाहा तो इन दिनों में इंशाल्लाह शराब नोशी की इजाजत तो मिल जाएगी ना? शराब नोशी को खुदा ने हराम किया है माँ, इसकी कौन इजाजत दे सकता है? मैंने सुना है कि अमीरुल मोमिनीन यजीद बजाते खुद शराब और शेर वाले हैं। शराब पियो, मिंबर जलाओ, लेकिन लोगों को तंग मत करो। तुम्हारा मुंह हमेशा इतना ही गलत सलत चलता रहता है गधे। गलत इल्जाम क्यों लगा रहे हो? अगर मुस्लिम को तुम्हारे घर में ना पाया तो फिर देखना क्या हशर करता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं सलार? मैं उससे ये थोड़ी पूछ रहा हूँ कि वो मुस्लिम है या नहीं। जैसी निशानी आपने बताई उनके मुताबिक तो वही होना चाहिए। बिलाल, बिलाल, कहाँ चले गए मनहूस लड़के? तुम तो हमेशा जोहर की नमाज तक सो रहे होते थे। आज सवेरे सवेरे किस जहन्नम में चले गए हो? घर का मुहासरा किया हुआ है इब्ने अकील। तुम्हारे पास राह फरार नहीं है। तलवार उठाए तो घर को तुम्हारे लिए जहन्नुम बना देंगे। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पर लानत है बिलाल, मनहूस बगैर बाप के शराबी लड़के। ये एक हाशमी है बिन हुरैस, अरब के शेरों के कबीले से है, अली और हमजा के खानदान से है। जब तक उसके हाथ में तलवार है बहुत मुश्किल है इस पर काबू पा सके। मैं मुस्लिम को मारना नहीं चाहता इब्ने अशश, उसे अमान दे दो, शायद कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो।
मर्द का बच्चा है जो मुझे एक घूंट पानी दे दे। इब्ने अकील, मैं इब्ने अशद हूं जो तुमसे बात कर रहा हूं। अगर मजीद लड़ते रहोगे और हमारे आदमियों को कत्ल करते रहोगे तो अमीर खून के किसास के तौर पर तुम्हें भी कत्ल कर देगा। अपने आप को हमारे हवाले कर दो। मैं अपनी इज्जत की जबान देता हूं कि तुम्हारे लिए अमान नामा ले लूंगा। कोई बात करो मुस्लिम। मुझे मार दोगे या अमान दोगे? क्यों पूछ रहे हो? मैंने अमान के वादे पर तलवार रोकी है, वरना मैं तस्लीम ना होता। मैदान जंग में मारा जाना मेरे लिए ज्यादा बाइज्जत मंजिल थी। हाशमियों के सर उठाने से खुदा की अमान। असीरी की हालत में भी रजस ख्वानी करते हैं। ये लोग इल्तमास के लफ्ज को तो पहचानते ही नहीं। हम सिर्फ खुदा की बारगाह में इल्तिमास करते हैं। तो फिर खुदा से इल्तिमास करो, शायद वो तुम्हारी दुआ सुन ले और मुझे तुम्हारे कत्ल से रोक दे। खुदा से तलब मगफिरत करता हूं। मैंने कहा था ना, हाशमियों का गुरूर उन्हें खुदा के आगे भी इल्तिमास करने नहीं देता। तुम्हें कत्ल कर दूंगा मुस्लिम। मैं जानता हूं कि तुम इतने सखी नहीं हो कि अपने दुश्मन को बख्श दो। मैं अपने किसी ऐसे जानने वाले को वसीयत करना चाहता हूं जो इस वक्त यहां मौजूद हो। बिस्मिल्लाह। ऐ इब्ने साद, मेरे और तुम्हारे बीच रिश्तेदारी है। मैं तुम्हारे जरिए एक वसीयत करना चाहता हूं, एक राज की तरह। मैं कोई अच्छा राजदार नहीं हूं, मुझे माफ कर दो। ऐ पिसरे साद, मुजायका मत करो। ये बात मर्दानगी के खिलाफ है। तुम्हारा अजीज मौत के दहाने पर खड़ा है, उसकी वसीयत तो सुन लो। अगर उसकी वसीयत सुन लूंगा तो फिर मुझे उस पर अमल करना पड़ेगा। कोई बात नहीं। हरचंद के उस जैसे की वसीयत पर अमल करना जो कि मुर्तद है, सवाब भी नहीं और गुनाह भी नहीं। तुम्हारी गैरतमंदी और मर्दानगी बढ़ जाएगी इस तरह। वसीयत पे अमल करना आपकी मर्जी के खिलाफ हुआ तो क्या? फिर भी उस पर अमल करने को मर्दानगी समझते हैं। अब तक तुमने उसकी वसीयत नहीं सुनी बंदे खुदा। अगर उसकी दरख्वास्त मेरे जाती मफादात के खिलाफ हो, पूरा कर देना, कोई बात नहीं। लेकिन अगर उसकी दरख्वास्त शरीयत मुक़द्दस के खिलाफ हो तो अमल ना करना, उसका कुफ्फार अदा कर देना। वसीयत सुनाओ मुस्लिम। मेरे चचेदाद भाई हुसैन इब्न अली को लिख दो कि कूफा ना आए, लौट जाए। मेरे मरने के बाद मेरे जिस्म को दफना देना कि ज़मीर बड़ा ना रह जाए। मैं कूफा में 700 दिरहम का मखरूस हूं, वो अदा कर देना। मेरी ज़रा और खुद को बेच के अदा कर देना। जानते हो वो मुझसे क्या चाहता है?
वो तुम्हें अमानतदार जानता है उमर, राजदार रहो। अमानतदार कभी खयानत नहीं करता। हर चंद के बाज औकात खयानतकार शख्स को अमीन बना दिया जाता है। खूब मुस्लिम, तुमने वसीयत कर दी? कोई और ख्वाहिश है? मैं प्यासा हूं, थोड़ा सा पानी दे दो। बिन हुरैस, इसे पानी दे दो, मगर उस प्याले में जिसमें हराम गोश्त जानवरों को पानी देते हो। वो मुर्तिद हो गया है और जिस चीज को मुंह लगाएगा वो शरन नजस हो जाएगी। जी अमीर। मुर्तिद तो तुम हो कि बगैर किसास उस बंदा खुदा को कत्ल करते हो कि जिसका कत्ल करना हराम है। जो शख्स सिर्फ अपने गुस्से और सुए ज़न की बिना पर लोगों का कत्लेआम करता है वो मुर्तिद कहलाने का ज्यादा हकदार है। तुम जैसे शख्स की सांस और पसीना नजिस है जिसने अपने दिल को इब्लीस का घर बना लिया है। इब्लीस तो तुम हो कि नफ्स की ख्वाहिश की बिना पर खलीफा मुस्लिमीन पर खुरूज करते हो और वलीउल मुस्लिमीन पर तलवार उठाते हो और मुसलमानों के दरमियान तफर्रुका पैदा करते हो। तुम्हारा मुर्तिद होना बिल्कुल मुसल्लम है। मैं तुम्हें खुदा की रजा के लिए कत्ल करूंगा, ना कि गुस्से और सुए ज़न की वजह से। खुदा की कसम, तुम झूठ की जड़ हो। अगर इस गिरोह के पास राई के दाने के बराबर भी खौफ खुदा होता तो तुम्हारे झूठ की गवाही देते। अफसोस, अफसोस के दुनियावी ताल्लुकात ने मुसलमानों को इतना गिरा दिया है कि उनमें इंसाफ, शुजाअत और ईमान भी खत्म हो गया है। हम एक गासिब खलीफा के खिलाफ एहतिजाज कर रहे हैं। हमने कैसर और कसरा जैसे शख्स के खिलाफ तलवार उठाई है। हमने निफाक नहीं किया, इत्तिहाद किया है। इराक के लोगों के 12,000 खतूत हमारे गवाह हैं। क्यों पानी नहीं पिया? मेरे मुंह का खून माने हो गया। देख लिया ना, खुदा भी तुम्हें पसंद नहीं करता। वो चाहता है प्यासे मरो। ये पानी मेरे लिए था ही नहीं, वरना खुदा की रहमत का दरिया बेकरां है। शायद प्यासा मरना मेरे जिहाद के अजर को पूरा कर देगा। तुम लोगों का खुदा के बारे में जो गुमान है वो तुम्हारी तरह हकीर है। खुदा को इंसान नुमा कोई चीज समझ रखा है क्या? अपने गुनाह की फिक्र करो मुस्लिम, खुदा की मार्फत अपने पास रखो। क्या तुम लोग ये गुमान करते हो कि खिलाफत में तुम लोगों का कोई हक है? गुमान नहीं है, यकीन है। सुन लिया आप लोगों ने भाइयों, सुन लिया? उमवी और अलवी के झगड़े की जड़ यही दावा है। जब देखो बहाने ढूंढते रहते हैं। अब दीन का क्या होगा, सुन्नत पैगंबर का क्या होगा, कुरान का क्या होगा, अहकाम दीन का क्या होगा, वगैरह वगैरह। ये रसूल खुदा का सही और मुहक्कम कौल है। बिदअत ले आया है। बिदअत अलवियों का कोई विरासत का दावा नहीं है। इनका खिलाफत में हक है तमाम मुसलमानों की तरह। खिलाफत उम्मत के नेक, साले, मुकर्रब और मोमिन लोगों का हक है। खुदा की कसम, अली और उनकी औलाद उम्मत के मुकर्रब तरीन और बातकवा तरीन लोग हैं। ये मेरे अल्फाज नहीं हैं। अली से पहले के खुलफा ने भी अली की दयानत, तकवा और इल्म की गवाही दी है। खामोश झूठे, अपनी झूठी बातों को खुलफा से मंसूब करते हो। खुदा की कसम, तुझे ऐसे मारूंगा कि दीन के आगाज से लेकर आज तक किसी को भी इस तरह नहीं मारा गया होगा। हाँ, तुम वही हो कि वो बिद्दत दीन में लेकर आओगे जो पहले कभी न थी। नामर्दाना कत्ल और आजा का कता करना और लाश को बरहना करना और घोड़ों से पामाल करवाना तुमसे कुछ भी بعید नहीं। कोई है जिसने इस मुर्तिद से कोई जख्म खाया हो? मैं हूं अमीर, बुकैर इब्ने हुबरान अहमरी। ये वो जख्म है जो मुस्लिम इब्ने अकील ने मुझे दिया है। बुकैर, इसे महल की सबसे बुलंद जगह से गिरा दो और इसके बदन से इसके सर को जुदा कर दो। जी अमीर। चलो।
सलामत रहो अबू इसहाक। तुम भी सलामत रहो खबरसां कबूतर। आजकल ज्ञान ईरानियों के अफसानों के मुल्क से मुशाबिहत रखता है। इसका नाम ही लेना काफी है ताकि फौरन मद्दे मुकाबिल सामने आ जाए। वादा पूरा हुआ ज्ञान, देर तो नहीं हुई हमें। ताजील और ताखीर तुम्हारी नहीं थी, तुम जो भी कर सकते थे तुमने किया। किनायों में बात कर रहे हो ज्ञान, कुछ हुआ है क्या? तन्हाई चाहिए अबू इसहाक। कुछ ऐसी खबरें हैं जो सिर्फ तुम्हें पता चलनी चाहिए। क़याम जनाब मुस्लिम टूट गया अबू इसहाक। कूफी बेगैरतों की तरह भाग गए। जनाब मुस्लिम तन्हा रह गए, मारे गए। मारे गए? ऐसा तो नहीं कि फिर कुफियों के तबले फट गए हों बिन कामिल? गलत क्यों सोचते हो अबल हदीद? इंशाल्लाह सब ठीक ही होगा। कल जब हम अलग हुए हैं मैं एक सांस में दौड़ा। इशा के वक्त कूफा पहुंचा। सिपाहियों ने शहर का रास्ता बंद कर रखा था। नहर के रास्ते गया। मैंने मुस्लिम इब्ने उसजा और हबीब इब्ने मज़ाहिर को देखा। कूफे से निकल चुके थे। बज़ाहिर सिपाही उन दोनों का नहर के साहिल तक पीछा करेंगे और वो मजबूरन पानी में कूद जाए। जनाब मुस्लिम की बेकसी और खो जाने की रुदाद मैंने उन लोगों से सुनी। हबीब मुसलसल नदामत के आंसू बहा रहा था और उसका विर्द ज़ुबान मुख्तार था। मैं क्यों? उसे गम था कि उन्होंने तुम्हारे मशवरे पर अमल क्यों नहीं किया। मुस्लिम और हबीब कहाँ गए हैं? मक्के की तरफ। वो दोनों मौला हुसैन की खिदमत में जल्द से जल्द पहुंचना चाहते थे। अजीब बदबख्त हैं। कितने कमजोर दिल थे ये लोग। वाह हो कौमे मिज़हज पर कि गैरत को मर्दानगी को भी बेच दिया। वाह हो मिज़हज कबीले पर कि उनका नाम डूब गया। कहाँ है? पकड़ो इसे। कहाँ है वो गैरतमंद मुसलमान जो अपने खून की गैरत का दिफा करे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें कूफियों। डूब मरो तुम लोग। खुदा तुम लोगों को खत्म कर देंगे। फर्जंद रसूल को एक बदकारा के बच्चे के हाथों बेच दी। तुम लोग तो इस बात के हकदार हो कि खुदा कौमे नूह और कौमे समूद का अज़ाब तुम पर नाज़िल करे। स्याह चेहरे वाले दोज़खियों, हुसैन को तुम लोगों ने कूफे बुलाया ताकि उनके खून का सौदा कर सको। आप लोग जानते हैं इब्ने मरजाना कौन है?
ابن مرجانہ وہی پلید شخص ہے جس نے بصرہ میں ایک محلہ بنوایا اور اس میں فتح خراسان کی اسیر شدہ عورتوں سے زبردستی فحاشی کروائی. ابن مرجانہ وہ سفاق ہے جس نے عورتوں کے پیٹ کے بچوں پر بھی رحم نہیں کیا. خاموش کافر حربی، اپنی گردن نیچے جھکاؤ. اتنا سخی نہیں ہوں کہ تمہارا اپنے قتل میں بھی ساتھ دوں. کیا تم بھی وہی سوچ رہے ہو جو میں سوچ رہا ہوں؟ امیر کس بارے میں سوچ رہے ہیں؟ مختار کی موت. جسارت نہ ہو تو عرض کروں کہ جتنا کم خون بہے گا حکومت کی بقا اتنی ہی بڑھ جائے گی. خدا گواہ ہے کہ میں بھی مختار کے زندہ رہنے سے بہت ناخوش ہوں، مگر اسے مارنے کو فی الحال خلاف مصلحت سمجھتا ہوں. مختار اور رانی جیسوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس نے اور اس کے ساتھیوں نے سخت دنوں سے مقابلے کی مشقیں کر رکھی ہیں. میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ اسے مارنے میں جلدی مت کیجیے. اے ابن سعد، مختار کو یا تو ہمارے ساتھ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے. کوئی تیسری راہ تو موجود نہیں ہے نا؟ بات چیت سے معاملہ حل کیا جا سکتا ہے. اسے تسلیم ہونے پہ مجبور کر دیں. اگر نہ مانے تو؟ تسلیم نہ ہو تو اسے مار دیں. موت ایک بار کی ہے اور زندگی بھی. اگر مختار کے مرنے سے کوئی واقعہ رونما ہونا ہے تو بہتر ہے ابھی رونما ہو جائے. کوئی شک نہیں کہ امیر کی سمجھداری ہر خاص عوام کی زبان پر ہے. پچھلے ہنگامے میں امیر کی ذکاوت نے مجھے حیران کر دیا تھا. مجھے یقین ہے امیر کے آپ مختار سے نمٹنے کے تمام حربوں سے واقف ہیں. یقیناً آپ نے کوفہ کی حکومت کے لیے کوئی نہ کوئی فکر کر رکھی ہوگی. آئے دف ہے کوفیوں کی قبر پر. خدا لعنت کرے ان کچے کان والے لوگوں پر. خود خدا بھی میدان میں اتر آئے. خدائے محمد گواہ ہے یہ بےغیرت لوگ ضرور خیانت کریں گے. بھتیجے، اس جماعت کو جب تک ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دو ان کے شر کو ختم نہیں کیا جا سکتا. گیدڑ کو کبھی انسان نہیں بنایا جا سکتا. ابو اسحاق، خون مسلم نے ہماری غیرت کو مزید للکارا ہے. انتقام کی پیاس میں ہم جل رہے ہیں. ہمارا ساتھ دو گے تمہاری رکاب میں کوفے کو اشیاء کا قبرستان بنا دیں. کس بات سے منہ پھیرے ہوئے بیٹھے ہوئے ہو ابو اسحاق؟ تمہیں یاد ہے نا جب ہم کوفیوں کی بے وفائی کے بارے میں جدل کر رہے تھے تو تم نے مجھ سے چاہا کہ دل سے بیعت کروں اور کوفیوں سے کسی قسم کی امید وابستہ نہ کروں. کوفیوں نے ہمارے ساتھ خیانت کی. یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. اپنے دل کی خبر لو کہ عرش کی طرف پرواز کے شوق میں بالو پر مار رہا ہے. اٹھو تاکہ ہم خون کے دریا میں نہائیں. بقول تمہارے ہم وہی جمل و صفین و نہروان کے شیر ہیں. تم نے میرے مردہ دل کی آگ کو دوبارہ بھڑکا دیا ہے. تم بیٹھ جاؤ گے تو یہ آگ دوبارہ تھم جائے گی. اٹھو مختار، جناب مسلم کے داغ نے ہمیں مزید جری بنا دیا ہے. اٹھو مختار، اپنے باپ ابو عبید کی طرح ایک نعرہ لگاؤ تاکہ کوفے کے تمام گیدڑ نما لوگوں کے دل بیٹھ جائیں. میری جان کی قسم ہے
ہماری حکمت کو رائے گا مت جانے دو، اے وہ جس کی غیرت پر میں صدقے جاؤں۔ امن کے علم اٹھاؤ، ہنگامہ آرائی کرنے والوں میں سے جو بھی توبہ کرے اور تمہارے پرچم تلے آ جائے اسے امان دینا، اور ہاں اپنے کچھ کارآمد لوگوں کی فوج لے کر مختار کے مقابلے پر جاؤ اور ان پر راہ بند کر دو۔ کوشش کرنا کہ مختار اور اس کے ساتھیوں کو سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کر دو۔ اگر وہ امان چاہیں تو انہیں امان دے دینا۔ جسارت کر رہا ہوں امیر، مجھے تو مختار کو امان دینے سے معاف رکھیے، میں لڑنا بہتر سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ میں مختار کو امان کا وعدہ دے کر اس پر عمل نہ کروں، یہ مجھ سے نہ ہوگا۔ عجیب ہے، ٹھیک ہے وعدہ کرو اور عمل کرو۔ مسلم سے بھی وعدہ کیا گیا تھا مگر آپ نے اس کی لاج نہ رکھی۔ میں نے مسلم سے امان دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا، ابن اشعث نے اپنی طرف سے وعدہ کر لیا تھا، میں نے نہیں۔ اور پھر کیا تم اپنے آپ کو ابن اشعث سے ملا رہے ہو؟ ہاں، تمہاری قدر و قیمت میری نظر میں ابن اشعث سے 100 گنا زیادہ ہے۔ تمہاری بات میری بات ہے، شک کو دل میں جگہ مت دو۔ جاؤ، مختار تمہارا منتظر ہے، اگر تسلیم نہ ہو تو اسے قتل کر دو۔ مجھے رخصت دو ابو اسحاق، میں میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ بن کامل دشمن صلح کا پرچم لہرایا ہوا ہے، کیا تم نہیں دیکھ رہے؟ ان کا لڑنے کا ارادہ نہیں ہے۔ اگر ان کا لڑنے کا ارادہ نہ ہو تو تم نہیں لڑو گے؟ کس لیے لڑیں جب دشمن لڑنا نہیں چاہتا تو؟ مختار، اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان خطر میں مت ڈالو۔ یہ لشکر جو تم دیکھ رہے ہو ان کی تعداد اتنی ہے کہ میں اسے گننے کی قدرت نہیں رکھتا تھا۔ یوں سمجھو کہ جتنے بھی تلوار باز تھے کوفے میں وہ ابن سعد کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ اگر خودکشی کرنا چاہتے ہو تم لوگ تو تلوار اٹھاؤ، میری صلاح چاہو تو سر تسلیم خم کر دو اور اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خون خرید لو۔ تمہاری تلوار غلاف میں رہے یہ بہتر ہے، یا غنیمت کے طور پر عمر سعد کی کمر پر باندھی جائے۔ یقیناً کوفہ کی خبریں تو سنی ہوں گے تم نے، مختصراً عرض کرتا ہوں۔ کوفیوں نے مسلم کو پیٹھ دکھا دی، مسلم اور ہانی دونوں مارے گئے، مزحزیوں کی ایک آواز بھی نہ نکلی۔ تمام کوفی ابن زیاد کے پرچم تلے اسلام کا نعرہ لگا رہے ہیں اور حسین ابن علی کو حق پر نہیں سمجھتے۔ اب صرف تم رہ گئے ہو اور یہ قلیل سی تعداد، اب تمہاری مرضی۔ تم نے ایک بار جوانی میں میری جان بچائی تھی، میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ اگر ہتھیار ڈال دو تو شریفانہ وعدہ کرتا ہوں امیر کے حضور تمہاری بخشش کرا دوں گا اور تمہارے لیے امان مانگوں گا۔ مجھے اجازت دو کہ اس کے تن سے اس کا سر جدا کر دوں ابو اسحاق۔ یہ شخص ہماری شرافت خریدنے یہاں آیا ہے۔ ان لوگوں کی بات ماننا سراسر خطا ہے، ان لوگوں نے جناب مسلم کو بھی امان دی تھی۔ ان کا سفید جھنڈا صرف ایک چال ہے ابو اسحاق، اگر رخصت دے دو تو منہ توڑ جواب دوں گا اس ملعون کو۔ ان کے پیچھے کوئی ہجوم نہیں، یہ جھوٹ ہے کہ یہ لوگ میرے ساتھ کے لشکر کے ہمراہ ہیں۔ یہ کتا کون ہے ابو اسحاق؟ اس نے اپنے نام و قبیلے کی کوئی بات نہیں کی۔
भाइयों, जब तक दुश्मन की कमजोरी और कुव्वत को न पहचान लो, तलवार पर हाथ रखना खता है। मैंने इश्क और अक्ल के खिलाफ तलवार नहीं उठाई, हारने के लिए मैदान में नहीं आया हूं। मैं जीतने की फिक्र करता हूं, हार की नहीं। तो अपने गुस्से को लगाम दीजिए, अपने आप को संभालिए और मेरी बातों को गौर से सुनिए। आज मामला दुश्मन के हाथ में है। जहां जीत हमारी थी, हमारे साथियों ने दलीलें तराशना शुरू कर दी और जंग से परहेज करके उसे मकरूह कह दिया और इतना वक्त जाया किया कि दुश्मन को हाथ पांव चलाने का मौका मिल गया और उसने अपने साथी काफी तादाद में बना लिए और हम पर सबकत ले गए। दुश्मन हमारे तस्लीम हो जाने का ख्वाह नहीं है, उसे ये खुशी है कि हम लड़ रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं कि सफेद झंडा उठाया हुआ है और सुलह की बातें कर रहे हैं, ये हमसे किसी खौफ की बिना पर नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि इनके पास कोई ऐसी दलील हो हमारे खिलाफ जिससे अवाम का मुंह बंद हो जाए। बखुदा कसम मैं न मौत से डर रहा हूं और न इस बात से कि हम तादाद में कम हैं और दुश्मन ज्यादा। मेरा डर हमारे गम और गुस्से के मर जाने के बारे में है, वो गम और गुस्सा जो हमारे दिलों में छुपा हुआ है। दुश्मन हमें मार दे तो उसने हमारे गम और गुस्से को मारा है, और हमारा गम और गुस्सा मारा जाए तो दुश्मन किससे डरेगा? तो फिर अपने कीन और गम और गुस्से को अपने साथ अपने कबीलों में ले जाओ और उस दिन का इंतजार करो जिस दिन हम इस अमल का बदला दुश्मन से लेंगे और गलबे के लिए मैदान में आए, न कि शिकस्त के। अबू इसहाक, तुम हथियार डालना चाहते हो? तो फिर अपने फिदाइयों का सर कलम कर दो। कियान बिन कामिल, इतने साल जो हमने खूने दिल पिया है वो मत भूलना। यह फैसला हरगिज नहीं किया था हमने कि गैर बराबर जंग में अपनी आरजुओं को अपने जज्बात के आगे कुर्बान करते हैं। इतना हौसला नहीं है मेरे पास मुख्तार। तुम लोगों का फैसला नहीं हुआ अब तक? बहुत जल्दी है बिन हुरैस। मेरे हजार तरह के मशगले मुख्तार, तुम्हारी तरह फारिग नहीं हूं कि जब देखो मक्खी के छत्ते में उंगली मारूं। क्या हुआ? अपनी जान का सौदा करते हो या तस्लीम करते हो? तुम और मेरी जान लोगे? हाँ, मैं क्यों अपने आप को बदनाम करूं? उमर साद जैसा एक मलकुल मौत मेरे पीछे बारी लगाए खड़ा है। मैं सिर्फ अपना कर्ज चुकाना चाहता था, सिर्फ यही। मेरे साथियों की भी जान की जमानत देते हो? तुम्हारे साथियों से क्या लेना देना? झगड़ा तुम्हारे साथ है। जब तुम ही इन लोगों को जोश दिलाने के लिए नहीं होगे तो ये अपने भेड़ बकरियों के पीछे चले जाएंगे। तो मुख्तार सकाफी आप हैं?
तुम बिल्कुल बरहक थे इब्ने साद। मुख्तार की हैबत कुछ कम नहीं है। हक बजानिब थे कि उसकी आंखों से खौफ खाओ। ये आंखें तलवारों और बर्छियों से भरी हुई हैं। मैंने कसम खाई है कि जिस चीज से भी डरूं उसे खत्म कर दूंगा। खुदा की कसम, बिन हुरैस की शिफात ना होती तो तुम्हारा खून बहा देता। इसकी जान तुम्हें बख्श दी बिन हुरैस। इसे शेर नर से ऐसा गीदड़ बनाऊंगा कि अपने साय से भी वहशत करे। इसे कैद कर दो। ऐ इब्ने साद। जी अमीर। जब तक हुसैन कूफे की राह में है, मैं कूफे की जाने से मुतमईन नहीं हो सकता। इससे पहले कि कूफा के लश्कर को रे पर गलबे के लिए तैयार करें, मक्के की तरफ जाओ और हुसैन और उसके साथियों का रास्ता रोक दो। हुकूमत रे उस बैत के बदले में है जो तुम हुसैन से लोगे। इस शख्स को जानते हो? जी सरदार, मुख्तार सक़फ़ी है। शाबाश। याद रहे कि मैंने इस मर्द दिलावर सक़फ़ी को शरीफाना कौल दिया है कि इसकी जान की जमानत दूं। मेरी शहरग भी काट दी जाए, मैं ज़बान से नहीं फिरूंगा। अपने ग़िज़ा खिलाओगे इसे, समझे? कोई भी पैगाम किसी की भी जानिब से मिले जो इसकी जान को खतरे में डाल दे तो मैं तुमसे क़िसास लूंगा। समझ आई? जी सरदार। और तुम मुख्तार, ये जान लो कि अब तक कोई भी इस काल कोठरी से जिंदा बाहर नहीं आया। लिहाजा अपना ख्याल रखना। गफलत बरतोगे तो खुद अपनी जान के जिम्मेदार होगे। जाओ। खुदाया, मेरी मदद कर। खुदाया, मेरी मदद कर।
मुख्तार, जंजीर में जकड़े हुए शेरों के मोहल्ले में खुशामदीद।